Okay, so in yesterday's class, we had completed the muscle contraction, sarcomere contraction mechanism, and we had completed the neuromuscular junction. And with that, we concluded the entire control and coordination within the humans. Today, we will be starting and hopefully, inshallah, finishing the coordination and control in plants. So there are three things that we have to study today. तो हम लोग एक एक करके वो सारी चीजें करते हैं. Now, one thing that I want to introduce before we talk about the coordination in plants, the control and coordination in plants is that plants do not have something known as an endocrine system, or they do not have anything known as the nervous system. Okay? Plants do not have a brain. So if plants do not have a brain, they do not have a spinal cord. That means that they do not have a nervous system the way we have studied it previously in this chapter. So there is no nervous system, no neurons, no spinal cord, no brain in a plant. Similarly, a plant does not have glands. It does not have endocrine system जहाँ पे हमारे पास जो glands हैं, they're secreting hormones. However, it still is able to undergo, it is still able to have electrical communication, and it also has chemical coordination happening inside a plant. नो ये इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कोई न्यूरॉन्स नहीं कर रहा है, नर्वस सिस्टम नहीं कर रहा, ये केमिकल कम्युनिकेशन हार्मोन्स की वजह से हो रही है. यस, देयर आर हार्मोन्स प्रेजेंट इन, क्या कहते हैं, आवर प्लांट्स, और वो सारे हार्मोन्स हमारे देखने लगे हैं. हम ऑक्सिन्स देखेंगे, हम जिब्रेलिन्स देखेंगे, तो हमारे पास हार्मोन्स होती हैं, और वो हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल मैसेजिंग कर रहे होते हैं. बट वो हार्मोन्स हमारे पास सेल्स ही बना रहे होते हैं. अभी हम क्या कहते हैं, जब हमने गार्ड सेल्स पढ़ा था, हमने स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग की थी, तो हमने एब्सिसिक एसिड की बात की थी. दैट एब्सिसिक एसिड वुड गो एंड बाइंड विद द सेल surface membrane receptors on the guard cells, and it would trigger an entire response in the guard cells. So abscisic acid was a chemical messenger. Abscisic acid was a hormone. So plants में chemical messengers होती हैं, hormones होती हैं, that's true. बट कोई ग्लैंड उनको रिलीज नहीं कर रहा होता. प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं वो ही रिलीज कर रहे होते हैं. A little revision from AS. हमने plasmodesmata पढ़ा था in AS, and we said plasmodesmata are cytoplasmic connections between two adjacent cells. Cell wall बीच बीच में से गायब होती है दो adjacent cells के दरमियान, और उस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के थ्रू हमारे पास रैपिड कम्युनिकेशन होती है केमिकल मैसेंजर्स की. सो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन भी होती है, केमिकल कम्युनिकेशन भी होती है प्लांट्स में. इट्स जस्ट दैट दे डू नॉट हैव अ टिपिकल नर्वस सिस्टम एंड दे डू नॉट हैव अ टिपिकल एंडोक्राइन सिस्टम. इज दिस क्लियर? सो प्लीज अगर कोई प्लांट का क्वेश्चन आए उसमें आप न्यूरॉन्स को लेकर नहीं बैठेंगे, आप न्यूरॉन्स पे डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज देयर आर नो न्यूरॉन्स इन प्लांट सेल्स, देयर आर नो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द प्लांट cells or in the plant as for that matter. ओके, अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से. इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हम विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक प्लांट पढ़ रहे होते हैं, जो कि आपके पास होता है वीनस फ्लाई ट्रैप. नाउ इफ यू गाइस वुड से हम वीनस फ्लाई ट्रैप की मुझे तो बहुत वो एयरी और हॉन्टिंग वीडियो लगती है, but if you guys want to see, so I'll make you guys see how it works. Do you guys want to see that video? मैंने अभी वो देखी थी स्टार्ट में, like 15-20 minutes before the class started, and oh my god, I had to cover my eyes because मुझे insects से बहुत डर लगता है. But if you guys, it's very cool because if you see that ना, आप visually उसको understand करोगे. शायद आप में से किसी ने देखा भी हो visually Venus flytrap का mechanism, but let's see it together. And interestingly enough, I actually exactly found the same video that my teacher played 2 years ago in the class, and it was such a deja vu nostalgic moment for me. मुझे तब भी बहुत डर लगा था और मुझे आज भी बहुत डर लगा है. So yeah, I found the exact BBC की video, so let me show it to you guys. Just a second. I hate mosquitoes. Oh my God. My favorite sport, if anybody asks me what's my favorite sport is to kill mosquitoes. I love killing mosquitoes. Killing a mosquito brings a sense of satisfaction in my life, which no other thing can. Wait a second.
लेट मी नो अगर आप लोगों को ऑडियो भी शेयर हो रहा हो. शेयर साउंड. ओके. दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नाउ. अच्छा. नाउ. The Venus flytrap. Like the sundew, it makes itself very attractive, oozing nectar across the brim of each leaf. But any visiting insect had better watch out for these 6 tiny hairs. This fly has to tread carefully. If it strikes one hair, it can carry on feeding, but a timer has been set. A second strike in less than 20 seconds and the fly is doomed. An electrical impulse is triggered and the leaf snaps shut in just a fraction of a second. The tips lock together like prison bars. If the fly is very big or very small, it may just manage to escape. But most are trapped and die. Ten days later, the trap reopens. All that remains is a husk. The plant has finished its meal and resets itself for its next victim. Okay. So, was it dramatic or was it not dramatic? Be honest. Of course, why would Emmett find anything dramatic? He would actually find it interesting for sure. I think so. It's the music. The music was so scary. I don't know why literally a Venus flytrap eating a fly made me feel goosebumps. And yeah, it was weird. बट मैंने कहा अब मैंने ये फील किया रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को मैंने देखा तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं अकेले क्यों ये दर्द सहूं ना. अब आप लोगों ने वो देख ली वीनस फ्लाई ट्रैप की वीडियो. यार द म्यूजिक इज द प्रॉब्लम एंड द कमेंट्री वाली आवाज. You joined. Okay, so basically, we were seeing a video of Venus flytrap eating a fly, and now we would actually start with our topic. I just wanted these people to see it so that you guys can visually, you have these visuals, these traumatic visuals, so paper में याद रहे कि क्या क्या हो रहा था. Now, can you guys tell me step by step what did you observe? What happened in the video? Emma, I'm sorry, I'm unable to understand your question. Miss, I'm asking that they said कि 20 seconds के अंदर अंदर अगर दोबारा हेयर को टच कर देगा तो फिर like it's going to close. So is it like कि वही वाली fly अगर दोबारा से उसको टच करे या फिर किसी और को जरूरी है करना? वही वाली अगर स्टिमुलेशन एक दफा जो हेयर है वो एक दफा हिल गया और विद इन 20 to 35 seconds वो फिर से हिला तो फिर वो फीनस फ्लाइट्रैप बंद हो जाएगा. वील डिस्कस वो दिस इन कोई भी हो डिटेल. सकता है, कोई भी वो हेयर हो कोई भी हो सकता है. सकता है बट वीनस फ्लाइट्रैप अगर देखो आप पिक्चर देखो इसकी
ये एक्चुअली ना बहुत सारे होते हैं, और ये हमें क्योंकि हमने इतना क्लोजअप देखा तो हमें लग रहा है कि ये वीनस फ्लाई ट्रैप का जो ये रोब है ये बहुत बड़ा है। ये एक वक्त में एक ही क्या कहते हैं इंसेक्ट को क्या कहते हैं इनकॉपरेट कर सकता है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी बिग। वो तो हम इतना क्लोजअप में देख रहे थे तो हमें बड़ा सा एक कमरा लग रहा था, बट एसेंशियली इट्स बेसिकली ए मॉडिफाइड लीफ। ये जो हमें नजर आ रहे हैं ना, ये जो हमने लोब्स देखे हैं, ये जो हमने खोलबंद देखा है, ये एक्चुअली कोई हमारे पास माउथ नहीं था, या ये हमारे पास कोई स्टमक नहीं था। इंस्टेड ये लीव्स हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप के जो लीव्स होते हैं ना वो ऐसे दिखाई देते हैं। इनको हम मॉडिफाइड लीव्स बुलाते हैं। ठीक है। तो अब एक लीव ये इस तरह का होता है कि यूजुअली इसमें एक ही इंसेक्ट आता है, बट अगर फॉर इंस्टेंस ऐसा एक लीफ है या इतना छोटा कोई इंसेक्ट है कि एक वक्त में दो इंसेक्ट्स हैं, और दो इंसेक्ट्स ने विद इन 20 सेकेंड्स या 35 सेकेंड्स ब्रश कर लिया है अपनी बॉडी को अगेंस्ट द स्टिफ हेयर, द सेंसरी हेयर, तो हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप बंद हो जाएगा। विद इन 20 to 35 सेकेंड्स अगर सेकंड स्टिमुलेशन हुई, सेकंड टाइम हमारा जो हेयर है उसने मूवमेंट फील की, वो स्टिमुलेटेड हुआ, तो ट्रैप हमारा बंद हो जाएगा। वो चाहे एक इंसेक्ट करे या दो इंसेक्ट करे। ठीक है। Miss, or like the same hair should be stimulated या फिर कोई भी hair on the same Venus like plant? कोई भी, आई थिंक कोई भी हमारे Okay. पास हेयर होगा ना, दैट वुड कॉज दैट। अच्छा। Okay. ना हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं ये है क्या हमारे पास। इफ वी लुक एट अ वीनस फ्लाई का एक पर्टिकुलर लीफ जो इसका मॉडिफाइड लीफ है, तो हमें क्या नजर आ रहा है, एक तो इसका कलर जो है वो एक रेड कलर है। ठीक है। अंदर का जो एरिया है जो एक्सपोज्ड है वो रेड कलर है, तो अगर कोई इंसेक्ट आ रहा है तो उसको क्या नजर आ रहा है, एक रेड कलर आ रहा है। इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू स्मेल, कलर एंड नेक्टर। हमारे पास आई डोंट नो इफ यू गाइस ऑब्जर्व, बट शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो लीफ की सरफेस पे थी उस पे थोड़ा थोड़ा फ्लूइड की बॉल्स थी, फ्लूइड ड्रॉप्स थे। दोस फ्लूइड ड्रॉप्स आर बेसिकली नेक्टर। वो जो फ्लूइड था ना वो नेक्टर था। तो ये जो सरफेस है ना इस लीफ की, इट इज रिच विद नेक्टरीज। नेक्टरीज हमारे पास वो एरिया होता है जहाँ नेक्टर बनता है, और वहां से डक्स के थ्रू नेक्टर सरफेस पर आ रहा होता है। सो एक तो हमारे पास ये वीनस फ्लाई ट्रैप का एक रेड बहुत अट्रैक्टिव कलर है। फिर इनके पास नेक्टर है। हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या किस चीज की तलाश होती है, उनको नेक्टर चाहिए होता है। सो वो प्लांट्स की तरफ आते ही नेक्टर की तलाश में, और फिर इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। नाउ सो दीज आर द थ्री रीजंस व्हाई अब whenever an insect is attracted to a Venus flytrap। so ये बहुत अट्रैक्टिव सा एक ट्रैप है फॉर एन इंसेक्ट। वो बेचारा हंसता मुस्कुराता आता है खाने की नेक्टर की तलाश में, और इंस्टेड वो बेचारा फंस जाता है और फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ना हमारे पास एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया, कलर डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस मिस कर लिया कि जी। मिस तो इंसेक्ट इतने बेवकूफ है, इनको अब तक पता नहीं चल पाएगी कि वीनस फ्लैट रैप इतना खतरनाक है। ये फिर भी उसके अंदर ही चले जा रहे हैं। जी। हमारे पास इनसे इसी वजह से शायद अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात और इंसेक्ट्स को अशरफुल मखलूकात भी बनाया, क्योंकि उनके पास वो वाला ब्रेन नहीं होता ना प्रोसेस करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, डिसीजन मेकिंग का। ये हो सकता है कि वो इवॉल्व कर लें और वो कम, बट देखो हमारे पास इंसेक्ट्स को इट्स लाइक आपको अगर किसी को ट्रैप करना है तो आप उसको कोई ब्राइब दोगे, ब्राइब के थ्रू आप अट्रैक्ट करोगे किसी को अपनी तरफ। तो यहाँ पर जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ना उसको पता है इंसेक्ट की कमजोरी, और वो इंसेक्ट की क्या कमजोरी है, नेक्टर, सेंट, कलर। तो वो ब्राइब दे रहा है। तो जो इट्स लाइक हम कभी कभार इवन इंसान अशरफुल मखलूकात होते हुए भी गलत डिसीजंस में फंस जाता है या गलत जजमेंट कर लेता है। क्यों ना कोई हमें किसी चीज में फायदा नजर आ रहा होता है और हम उस फायदे को देखकर कहते हैं कि यार हमें ये कर लेना चाहिए, और बाद में पता चलता है कि भाई ये तो घाटे का सौदा था, ये तो हमारा नुकसान हो गया। सो उसने इंसेक्ट के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाई हुई है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट उसके पास आ रहा है, उस पे लैंड कर रहा है। अब वो मजे से बेचारा अपना नेक्टर चूस रहा होगा, नेक्टर सक कर रहा होगा। अब नेक्टर सक करते करते अगर इंसेक्ट की बॉडी, अच्छा हमारे पास अगर हम हेयर काउंट करें, सो हमारे पास ये जो एक लोब है, एक सेक्शन है और दूसरा सेक्शन है, सो वी हैव टू लोब्स। हमारे पास एक वीनस फ्लाईट्रैप का जो मॉडिफाइड लीफ होता है उसमें टू लोब्स होते हैं, और द टू लोब्स आर बेसिकली ज्वाइन टुगेदर। जिस पॉइंट पे वो ज्वाइन हो रहे होते हैं ना उसको हम हिंज बुलाते हैं। हिंज इज बेसिकली द पॉइंट वेयर द टू लोब्स आर ज्वाइंट टुगेदर। एक लोब पे तीन हमारे पास सेंसरी हेयर है, और एक लोब पे हमारे पास तीन सेंसरी हेयर है।
नाउ somebody in the chat box asked कि हमारे पास जो ये सेंसरी हेयर है whether they are neurons or not, so हमारे पास न्यूरॉन्स नहीं होते प्लांट सेल्स में, कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन रिसेप्टर्स होते हैं। नाउ रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स हमारे पास बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। इवन हमारी बॉडी में भी जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली योर न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, वो नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन उनके बिल्कुल नीचे लाई कर रहा होता है, और वो जो रिसेप्टर है वो फिर अपना मैसेज, जब वो मैकेनिकल या केमिकल मैसेज को एक एक्शन पोटेंशियल में, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो भेजता है नर्व एंडिंग की तरफ। यू ऑल रिमेम्बर दैट? अगर मैं जल्दी से कीमो रिसेप्टर या मैकेनो रिसेप्टर दिखाऊं आप लोगों को, तो हमारे पास कहाँ गया, या ओवर हियर हमारे पास सी, दिस इज योर कीमो रिसेप्टर, इट्स अ स्पेशलाइज्ड सेल, और इसके नीचे हमारे पास नर्व एंडिंग है। सो हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। तो ये भी जो स्टिफ हेयर है ना, इट इज अ मैकेनो रिसेप्टर। एंड व्हाई इज इट अ मैकेनो रिसेप्टर? यहाँ पे हमारे पास जो इंसेक्ट है वो कोई केमिकल रिलीज नहीं कर रहा कि वो केमिकल को डिटेक्ट करके हमारे पास क्या कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप बंद हो रहा है। इंस्टेड हमारे पास एक मूवमेंट हो रही है, एक मैकेनिकल मूवमेंट हो रही है, एक मैकेनिकली हमारे पास जो ये स्टिफ हेयर है वो मूव करेगा, वो ब्रश अवे होगी इंसेक्ट की बॉडी विद द स्टिफ हेयर। हमारे पास अगर ये ब्रश मूव होगा, एक दफा मूव होगा कोई बात नहीं, फौरन से हमारे पास वीनस फ्लाईट्रैप बंद नहीं होता। बट अगर विद इन 20 to 35 सेकेंड्स हमारे पास जो स्टिफ हेयर है वो फिर से मूव होगा, फिर से उसको एक स्टिमुलेशन मिलेगी, तब हमारे पास क्या कहते हैं वीनस फ्लाईट्रैप बंद होगा। सो एक इंसेक्ट के पास 20 to 35 सेकेंड्स का मार्जिन होता है। अगर वो 20 to 35 सेकेंड्स में भाग गया, उड़ गया, तो वो बच गया, वरना तो फिर उसकी क्या कहती हैं द एंड हो जाएगा। सो वी हैव स्टिफ हेयर, these stiff hairs are basically your mechanoreceptor, they detect the mechanical stimulus। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ सकता है, suggest why the venus flytrap closes after on a second stimulation within 20 to 35 seconds। क्यों वो फौरन से बंद नहीं हो रहा, क्यों वो पहली स्टिमुलेशन पे बंद नहीं हो रहा? इंस्टेड अगर विद इन 20 to 35 सेकेंड्स एक दूसरी स्टिमुलेशन आ रही है तब बंद हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास अगर एक मैकेनो रिसेप्टर हिल रहा है तो वो एक इंसेक्ट की वजह से ही हिल रहा है। वो हमारे पास विंड भी तो पड़, विंड की वजह से भी तो हमारे पास क्या कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर हिल सकता है, या हमारे पास क्या कहते हैं रेन ड्रॉप्स की वजह से भी वो हिल सकता है, मिट्टी डेब्री की वजह से वो हिल सकता है। सो वो 25 to 30 सेकेंड्स का मार्जिन देता है वीनस फ्लाईट्रैप बंद होने से पहले। वो पहली स्टिमुलेशन पर फौरन से रिएक्ट नहीं करता, फौरन से रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि बिला वजह वो ओपन क्लोज हो रहा है, ओपन क्लोज हो रहा है, कोई इंसेक्ट है ही नहीं, वो ओपन क्लोज हो रहा है, ओपन क्लोज हो रहा है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, राइट? तो हमारे पास बेसिकली सेकेंड स्टिमुलेशन within 20 to 35 सेकेंड would cause the venous flytrap to close। पहली दफा में वो बंद नहीं होगा, दूसरी स्टिमुलेशन वो भी अगर 20 to 35 सेकेंड्स के अंदर अंदर स्टिमुलेशन हो रही है सेकेंड, तब बंद होगा, वरना वो बंद नहीं होगा। अच्छा अहमद, नाउ यू सी देयर आर 3 सेंसरी हेयर। अब एक साथ 3 सेंसरी हेयर पर लोब, तो एक वीनस फ्लाईट्रैप के लोब में हमारे पास क्या कहती हैं 3 times 2 6 है, तो अब वो एक साथ 6 सेंसरी हेयर तो लूज करेगा नहीं, एक लूज करेगा, दो लूज करेगा, सारे 6 के 6 तो लूज नहीं करेगा ना। तो इट इज वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और वेरी रेयर फॉर द वीनस फ्लाईट्रैप्स लोब टू लूज ऑल ऑफ इट सेंसरी हेयर एक साथ, ठीक है? शायद इसी वजह से अल्लाह मैंने उसको 3 या 6 हेयर दिए हुए हैं। अच्छा, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, the 2 lobes are joining at the hinge region, each lobe has 3 sensory hair। 3 क्या कहते हैं सेंसरी हेयर को हम स्टिफ हेयर भी बुलाते हैं, एंड these sensory hair are basically acting as mechanoreceptor। और हमारे पास इंसेक्ट्स क्यों ट्रैप हो रहे हैं, सॉरी क्यों इंसेक्ट्स हमारे पास अट्रैक्ट हो रहे हैं टू अ वीनस फ्लाईट्रैप? बिकॉज ऑफ द कलर, बिकॉज ऑफ द नेक्टर, बिकॉज ऑफ द सेंट। ठीक है, अभी कूल? हाँ, हमारे पास प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी इफ इट इज लूजिंग इट्स हेयर, बट ये इतनी आसान, ये हमारे सर के बालों जैसे नहीं है कि आसानी से गिर जाए, ये बहुत स्टिफ होता है, तो ये इतनी आसानी से लूज होते नहीं है।
तब फॉर यू होता ना. व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वेश्चन? Rama, can you open your mic and ask please? So I was asking about कि जब 20 seconds बाद स्टिमुलस आता है तो फिर फौरन से बंद हो जाता है ना? हाँ, अगर 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर सेकेंड स्टिमुलेशन हो गई है तो वो बंद हो जाएगा फौरन से. पहली स्टिमुलेशन पे बंद नहीं होगा. सेकेंड स्टिमुलेशन दैट ऑल्सो विद इन 20 to 35 सेकेंड्स अगर हुई है तो वो फौरन से बंद होगा. अच्छा, Okay. ये हमने डिस्कस कर लिया. ओके, नाउ दिस इज एन ओपन लूप. ठीक है, ये खुला हुआ है. अगर ये खुला हुआ है, कैन यू ऑल सी कि हमारे पास जो ये अंदर वाली सरफेस है, आई वांट यू गाइस टू फोकस ऑन द अंदर वाली सरफेस जो रेड सरफेस एक्सपोज हुई है. हमारे पास जो इनर सरफेस है, कैन यू सी कि इनर सरफेस अभी फ्लैट है. बाहर की तरफ से हमारे पास वो बल्ज हो रही है, बट इनर सरफेस हमारी फ्लैट है. यानी कि अंदर से इसके अंदर कोई इस तरह का बल्ज फॉर्म नहीं हो रहा है. ये यूं नहीं है, यानी ये इसके अंदर डेप्थ नहीं है कोई हमारे पास. ये फ्लैट है बिल्कुल. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट आई विल शो यू इधर से. हाँ, यहाँ पे देखो, इनर सरफेस अभी हमारी फ्लैट है बिल्कुल. ऐसे से चपाती होती है ना, उसकी तरह बिल्कुल फ्लैट है. बट हमारे पास जब क्लोज होगा, कैन यू सी कि हमारे पास इसके अंदर कुछ डेप्थ क्रिएट हो गई है. और वो डेप्थ क्यों क्रिएट हो रही है? ताकि एरिया हो एक इंसेक्ट को अकोमोडेट करने का. कैन यू सी यहाँ पर इनर सरफेस इज कॉन्वेक्स, फ्लैट है. और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारे पास अंदर थोड़ी सी हॉलोनेस क्रिएट हो गई है, थोड़ा सा बल्ज क्रिएट हो गया, थोड़ा सा कंपार्टमेंट क्रिएट हो गया. और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू आउटर सरफेस देखें, आउटर सरफेस जब हमारा प्लांट ओपन है तो आउटर सरफेस में बल्ज है, ये कॉनकेव है. और जब हमारे पास ट्रैप बंद हो गया है तो आउटर सरफेस फ्लैट हो गई है, कॉन्वेक्स हो गई है. कैन यू सी दिस ऑल ऑफ यू? या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? आई थिंक सो. आउटर सरफेस से विजुअलाइज करना आसान हो रहा है. आउटर सरफेस जब हमारे पास खुली हुई है, हमारा लोब्स खुले हुए हैं, तो आउटर सरफेस में एक बल्ज है, मतलब एक डेप्थ है. और जब हमारे पास लोब शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो अब ये आउटर सरफेस फ्लैट हो गई है, इसमें कोई हॉलो क्रिएट नहीं हो रहा. इसका ऑपोजिट हो रहा होगा अंदर. जब हमारे पास आउटर सरफेस कॉनकेव है तो इनर सरफेस is convex. It is flat. It is not bulging. But when our outer surface becomes convex, our inner surface is concave. उसमें area बन जाएगा, उसमें bulge बन जाएगा to incorporate or make space for the insect. Is this clear? Any questions about this? अच्छा, वीनस फ्लाईट्रैप ना एक प्लांट है मिसाल. उस प्लांट का हम एक लीफ देख रहे हैं, एक मॉडिफाइड लीफ देख रहे हैं. हर मॉडिफाइड लीफ में 6 हेयर होंगे, 3 on one loop, 3 on the other loop. ठीक है ना? हमारे पास हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया और हमने क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली. अब हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रैपिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा इसके अंदर क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये जो ट्रैप है ये शट क्लोज हो रहा है और हमारे पास जो इनर सरफेस है वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो रही है. और फिर हमारे पास ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर ही क्यों रहा है, ये इंसेक्ट्स को खा क्यों रहा है. तो हमारे पास जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, ये ऐसे एरियाज में ग्रो करता है जहां का सॉइल नाइट्रोजन डेफिसिट हो, उसके पास नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कम हो, उसके पास नाइट्रेट्स कम हो. हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, यू माइट हैव स्टडीड दिस इन योर ओ लेवल्स एंड इवन इन एएस हमने पढ़ा था कि हमारे पास नाइट्रेट्स चाहिए होते हैं एक प्लांट को ताकि वो अमीनो एसिड्स बना सके, ताकि वो अपने न्यूक्लिक एसिड्स बना सके. सो नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू मेक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. अमीनो एसिड का जो अमीन ग्रुप है, एक अमीनो एसिड बनाने के लिए हमने अभी फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि जब हमारे पास कैल्विन साइकिल होती है और एक ट्रायोस फॉस्फेट एग्जिट करता है उस कैल्विन साइकिल से, तो उस ट्रायोस फॉस्फेट से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं. और खाली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनते बल्कि अमीनो एसिड्स भी बनते हैं. अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं कि उस कार्बोहाइड्रेट के साथ हमारे पास जो नाइट्रोजन है फ्रॉम द नाइट्रेट्स वो कंबाइन करके अमीनो एसिड्स बनाता है. So plants need nitrogen. The plants need nitrates. The problem with Venus flytrap is that it is growing in areas जहाँ पे नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन सप्लाई कम है, नाइट्रेट्स कम है. तो वो अपना जो नाइट्रोजन डेफिसिट है वो कैसे फुलफिल करता है? वो अपना नाइट्रोजन डेफिसिट ऐसे फुलफिल करता है कि वो इंसेक्ट्स को खाता है. नाउ ऑब्वियसली हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं,
या कोई भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर प्रोटीन स्टोर, हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं. All organisms have protein. Proteins are essential for our survival. सारे organisms के लिए है. तो हमारे पास insects के अंदर proteins होंगे. तो वो insect को खाता है. इंसेक्ट के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है. तो एंड में हमने देखा था ना कि जब वो वीनस फ्लाई ट्रैप खुला तो हमारे पास खाली थोड़ा सा स्केलेटन जैसा या हस्क जैसा स्ट्रक्चर रह गया था फ्लाई का. मेजोरिटी चीजें वीनस फ्लाई ट्रैप ने खा ली थी. हाँ, इंसेक्ट की लाश हमें नजर आई थी और वो लाश भी हमें प्रॉपर डिसेंट तरीके से नजर नहीं आई थी बल्कि उसको खाया हुआ था. तो उसमें उसने क्या चीज उसने इंसेक्ट से ली, फ्लाई से ली, उसने नाइट्रोजन लिया. नाइट्रोजन कैसे लिया कि उस फ्लाई के अंदर जितने भी प्रोटीन्स थे उसने उस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया. ना प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होती हैं, प्रोटीजेस चाहिए होती हैं. सो हमारे पास इस ये जो लोब्स हमें नजर आ रहे हैं ना, उन लोब्स में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास सेल्स होते हैं. व्हाट आर यू अनएबल टू अंडरस्टैंड राहिमा? The Venus flytrap needs proteins. The Venus flytraps need nitrogens. ठीक है, उसको नाइट्रोजन चाहिए, उसको नाइट्रेट्स चाहिए ताकि वो अपने प्रोटीन्स बना सके, अपने अमीनो एसिड्स बना सके, अपने न्यूक्लिक एसिड्स बना सके. Venus flytrap is growing in a soil which is not nitrogen rich, which lacks nitrates, which lacks nitrogen. So वो नाइट्रोजन डेफिसिट वो कैसे पूरा कर रहा है? एक इंसेक्ट को खा के, इंसेक्ट से उसके प्रोटीन्स डाइजेस्ट करवा के वो अपना नाइट्रोजन डेफिसिट फुलफिल कर रहा है. ठीक है. So it's So, for all like Venus plants जहाँ पे भी होते हैं ग्रो करते हैं वहां पे नाइट्रोजन कम होती है हमेशा. यस यस यस, हमारे पास वो ग्रो ही ऐसे एनवायरनमेंट में करते हैं जहां पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है सॉइल के अंदर. ना Okay. हमारे पास क्या होता है, हमें वीनस फ्लाई ट्रैप की ना दो चीजें अंडरस्टैंड करनी है. एक तो हमें उसका डाइजेस्टिव मैकेनिज्म समझना है कि डाइजेशन किस तरह से होती है, और हमें ये भी समझना है कि हमारे पास वो ट्रैप क्लोज कैसे होता है. सो हमें मैकेनिज्म ऑफ ट्रैपिंग ही समझना है, और हमने क्या कहते हैं डाइजेशन कैसे हो रही है वो भी समझना है. अच्छा, पहले हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रैपिंग समझ लेते हैं. हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली लेट्स से ये हमारा लोब है, ये लोब है, ये लोब की सरफेस है, और मैं एक स्टिफ हेयर ड्रॉ कर लेती हूँ, एक सेंसरी हेयर ड्रॉ कर लेती हूँ. दिस इज योर सेंसरी हेयर ओवर हियर. अब हमारे पास ऑब्वियसली ये प्लांट सेल्स नीचे होंगे बिकॉज हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप इज अ प्लांट, इट इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स. तो लोब जो है उसकी सरफेस डेफिनेटली प्लांट सेल्स होंगे उसके नीचे, कि हमारे पास प्लांट सेल्स हैं. ठीक है. नाउ हमारे पास द वीनस फ्लाई ट्रैप गेट्स डिफ्लेक्टेड. डिफ्लेक्टेड का क्या मतलब है? वो मूव हुआ. अब जब वो डिफ्लेक्ट हुआ या वो मूव हुआ तो हमारे पास पहली स्टिमुलेशन पे एज सच कुछ नहीं होता, बट दूसरी स्टिमुलेशन पे क्या होता है कि हमारे पास this these plants cells beneath the lobe they get depolarized. now question ये है कि हमारे पास न्यूरॉन्स तो है नहीं, तो हमारे पास depolarization कैसे हो रही है? now this is a little extra information that I'm giving you. This is not something part of your syllabus, बट हमारे पास जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन्स का होता है ना, वैसे ही हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें न्यूरॉन्स नहीं होते हैं. वो सेल्स खुद ही अपनी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, खुद ही अपनी क्या कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन कर रहे होती हैं. यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की. नाउ हमारे लिए अब तक ये क्लियर हो जानी चाहिए बात फ्रॉम दिस चैप्टर कि जब हम इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है. इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आयंस इन एंड आउट मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई हमारे पास विद इन द सेल पोटेंशियल चेंजेस आ रही हैं, चार्ज कम या ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग हो रही है. इज दैट व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनिजम्स? That the movement of ions in and out basically decide the message. Right. So what happens is कि जब हमारे पास ये सेंसरी हेयर डिफ्लेक्ट होगा, सो हमारे पास इसके नीचे जो सेल्स है ना, इस सेंसरी हेयर के नीचे जो सेल्स हैं, इनमें क्या होंगे, इनमें हमारे पास इनकी सेल मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड
बल्कि चलो वोल्टेज गेटेड भी नहीं करते, हमारे इसके नीचे हमारे पास कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं. We would have calcium ion channels. Now, due to the deflection of the sensory here, these calcium ion channels would open. So ये हमारा जो लोब का सेंसरी हेयर है, जब ये डिफ्लेक्ट करेगा, उस डिफ्लेक्शन की वजह से जो हमारे पास उस सेंसरी हेयर के नीचे वाले सेल्स हैं, उनके जो कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, they would open. Now, when the channels have opened, calcium ions start to enter inside the cells. So the calcium ions का influx हो रहा है. Now calcium ions का influx हो रहा है. Positive charge is coming inside this cell. हमारे पास जब भी positive charge increase होता है, क्या हम ये कहते हैं कि depolarization हो रही है? Do we say this, that whenever the positive charge is increasing, that mechanism we call it depolarization? Right? हम ह्यूमंस में क्या देख रहे थे, सोडियम आयन इनफ्लक्स की वजह से डिपोलराइजेशन हो रही थी. यहाँ पे कोई सोडियम आयन्स नहीं है, इंस्टेड कैल्शियम आयन्स आर कमिंग इन. कैल्शियम आयन्स के ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है. सो हमारे पास नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि व्हाट इज इट दैट मेक्स द वीनस फ्लाईट्रैप की सेल्स अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास पहली दफा स्टिम्युलेट हुआ है सेंसरी हेयर या दूसरी दफा स्टिम्युलेट हुआ है सेंसरी हेयर, इनको पता कैसे चलेगा? नाउ हमारे पास जब ये पहली दफा हमारा हेयर डिफ्लेक्ट होता है, तो कैल्शियम आयंस का चैनल खुला, वो अंदर आना शुरू हुए. वो इतने ज्यादा अंदर नहीं आते कि हमारे पास ये सेल डीपोलराइज हो. हाउएवर, अगर विदिन 20 to 35 seconds this sensory hair gets deflected again, now this stimulation would basically speed up the entry of calcium ions into the cell, or it would cause more calcium ions to come. पहली दफा डिफ्लेक्ट हुआ, ओपनिंग ऑफ द चैनल हुई, थोड़े से कैल्शियम आयन आए. दूसरी दफा जब रिफ्लेक्ट हुआ, विद इन 20 to 35 seconds और ज्यादा कैल्शियम आयन आना शुरू हो गए, और ज्यादा कैल्शियम आयन आना शुरू हो गए. पॉजिटिव चार्ज इज बिल्डिंग अप विद इन द सेल, and that building up of the positive charge is causing the cell to become depolarized. Are you all with me? Any questions so far? समझ आया कि cells कैसे depolarize हो रहे हैं कैल्शियम आयन इनफ्लक्स की वजह से? मिस लेकिन फिर तो वही वाला हेयर होना चाहिए ना. क्या होना चाहिए? It should be the same hair that gets deflected again within 20 seconds. ना हमारे पास देखो, कभी कभार ये हो सकता है कि जो फ्लाई है वो ऐसी पोजीशन पे है कि वो बीच में है दोनों के, एंड नाउ वी कैन नॉट क्लियरली से कि हमारे पास कौन सा वाला हेयर डिफ्लेक्ट हुआ है ना. ऐसा भी तो हो सकता है. Yes, but like influx तो पहली बार एक ही से हुआ है ना. That's why I'm confused about it. ना हमारे पास देखो, ये मैसेज एक सेल से दूसरे सेल फैलेगा, खाली एक सेल डीपोलराइज नहीं हो रहा होगा. बट हमारे पास क्या कहते हैं, यूजुअली जब हम Okay. पढ़ रहे होते हैं ना, टू मेक इट सिंपल, हम यही कहते हैं कि एक हेयर डिफ्लेक्ट हुआ है. सो सिंपलिस्टिकली यस, वन हेयर इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड विच इज कॉजिंग दिस. सो यू आर राइट. ठीक है, तो हमारे पास एक हेयर डिफ्लेक्ट हुआ विच इज कॉजिंग द कैल्शियम आयन चैनल्स टू ओपन इन द सेल्स ऑफ द लोब वाला एरिया. कैल्शियम आयन इनफ्लक्स हुआ, जब हमारे पास जब सेकेंड टाइम स्टिमुलेशन हुई, इतने ज्यादा कैल्शियम आयंस आ गए कि डीपोलराइज हो गया वो सेल. एंड नाउ दिस डीपोलराइजेशन वुड ट्रैवल फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ये डीपोलराइज होगा, फिर ये डीपोलराइज होगा, फिर ये डीपोलराइज होगा. ठीक है, हमारे पास जब ये सेल डीपोलराइज हुए जा रहे हैं, सो नाउ आई वांट यू गाइस टू कम बैक ओवर हियर. अभी जो हमने सेल्स की डीपोलराइजेशन, सबसे पहले सेल की डीपोलराइजेशन देखी थी, वो प्रोबेबली लेट्स से अगर हम इस सेंसरी हेयर को सिलेक्ट कर लें, तो वो इस सेंसरी हेयर के नीचे हमारा एक सेल होगा. नाउ हमारे पास जो डीपोलराइजेशन का मैसेज है, वो एक सेल से दूसरे सेल फैलता जा रहा है, टू एन एक्सटेंट कि ये मेरा हिंज वाला एरिया है. द डीपोलराइजेशन सिग्नल would move from one cell to another and it would eventually reach to the hinge area. ठीक है, अब जब ये hinge area में reach कर जाएगा, तो हमारे पास basically when the hinge cells get this depolarization वाला message,
वो एक चीज करता है, they cause the increase of auxins within our venous flytrap. तो हमारे पास, let's start again. सेंसरी हियर स्टिमुलेट हुआ, 2 दफा स्टिमुलेट हो गया विद इन 20 to 35 seconds, जिसकी वजह से उसके नीचे जो सेल था इट गॉट डीपोलराइज्ड. द डीपोलराइजेशन सिग्नल स्प्रेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर टू अनदर टू अनदर until it reached the hinge area. हिंज एरिया में जब हमारे पास वो डीपोलराइजेशन का सिग्नल पहुंचा, तो हमारे पास हिंज सेल्स क्या करते हैं, दे कॉज एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन्स. नाउ बस यहां तक अभी याद कर लो कि हमारे पास जब हिंज सेल्स में सिग्नल पहुंचता है डीपोलराइजेशन का, तो ऑक्सिन्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है. ठीक है, अब ऑक्सिन क्या करेगा, जस्ट गिव मी 5 minutes, आई एक्सप्लेन ऑक्सिन का मैकेनिज्म एंड देन वील कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन. आर यू ऑल विथ मी अभी तक? एनी क्वेश्चंस? Yes, please could you repeat depolarization के बाद वाली चीज? हमारे पास डीपोलराइजेशन हुई सेंसरी हेयर के नीचे वाले सेल, वो डीपोलराइजेशन एक एक सेल में ट्रांसफर हुई, इवेंचुअली ट्रांसफर होते 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 वो हिंज एरिया तक पहुंचे. जब वो हिंज एरिया तक डीपोलराइजेशन का मैसेज पहुंचा, so once the hinge area received the depolarization message, it caused an increase in the concentration of auxins within the lobe. ठीक है, Yes, miss. ओके, कूल. अब हमारे पास हम आ जाते हैं डाइजेशन पर. ये हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आई एम जस्ट होल्डिंग दैट पार्ट फॉर अ बिट. मैं ऑक्सिन्स एक्सप्लेन कर दूं, फिर हमारे पास आसान हो जाएगा ये मैकेनिज्म समझना. डाइजेशन में क्या हुआ था, हमारे पास एक इंसेक्ट आ गया और उस इंसेक्ट के आने की वजह से हमारा ट्रैप क्लोज हो गया. अब जब हमारे पास ट्रैप क्लोज हो गया है ना, तो हमारे पास जो ये लोब वाला एरिया है, उसके अंदर जो सेल्स है, दो सेल्स ऑफ द लोब रिलीज द एंजाइम प्रोटीएज वया एक्सोसाइटोसिस. तो इन सेल से जो सारे हमारे पास जो ये रेड लोब है, उसके अंदर जो सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू एंजाइम्स बन रही होती हैं. तो इन सेल्स ऑफ द लोब में हमारे पास कौन सी एंजाइम होती होगी, प्रोटीएज एंजाइम होती होगी. जब भी हमारे पास ट्रैप शट हो जाता है, एक इंसेक्ट आ जाता है, सो द सेल्स ऑफ द लोब गेट ट्रिगर्ड, get this message that they have to release the enzyme protease via exocytosis on the surface of the loop. क्योंकि surface पे क्या है, fly है या कोई भी insect है. तो हमारे पास जब मैसेज, जब एक्शन पोटेंशियल सेल्स ऑफ द लोब में फैल रहा होता है, तो वो क्या रिजल्ट करवा रहा होता है, इट कॉजेज एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम दी सेल्स. किस चीज का एक्सोसाइटोसिस, प्रोटीएज का एक्सोसाइटोसिस. So the the depolarization message that is moving from one cell to another is triggering these cells to release the enzyme protease via exocytosis. Now, protease basically breaks down the peptides or the proteins present inside the insects to form amino acids. So, हमारे पास the proteins present in the insect are broken down into peptides or amino acids via this enzyme proteases. Or these amino acids are then further broken down. वो किस enzyme के through होते हैं? We do not have to know that. These amino acids are further broken down to release nitrogen rich mineral ions, which are then absorbed by the plant for its growth. सो डाइजेशन इस तरह से होती है कि जो हमारे पास डीपोलराइजेशन का मैसेज मूव कर रहा है, दैट मैसेज इज कॉजिंग द सेल्स टू रिलीज द एंजाइम प्रोटीएज वाया एक्सोसाइटोसिस, ताकि सरफेस ऑफ द मॉडिफाइड लीफ पर हमारे पास ये एंजाइम्स आ जाएं, एंड दीज एंजाइम्स स्टार्ट टू एक्ट अपॉन द फ्लाई in a way that it breaks down the proteins of the fly into amino acids, and the amino acids are further broken down to release nitrogen rich minerals, which are absorbed by the venous fly trap. Is the digestion part clear? Okay.